So if you're struggling to self-evaluate your essay, so you have come at the right place. Just do me a favor. Just hit the like button and save the video so that next time when you end up writing the essay, you're able to critically self-evaluate yourself. Now एक essay है जो कि मेरी एक स्टूडेंट ने लिखा था और इसका evaluation आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ because I believe right now is the time whereby the year is ending, you will be starting your prelims preparation in some time, and therefore it is very, very important for you to start your prelims preparation with that confidence that okay, fine, I've also done fair amount of essay writing as well. All right, now let's try to understand कि हम दूसरे लोगों के essay से क्या क्या गलतियां सीख सकते हैं ताकि वो चीजें हम अपने essay में incorporate ना करें. At the end of the day, you would want to incorporate those things in your essay which will give you marks, and also the way which you have to incorporate those things which will give you more marks than the average aspirant. So there are certain things, there are certain techniques जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. So इस टॉपिक से हम शुरू करते हैं. So the student, it doesn't matter किसने लिखा है, बस एक स्टूडेंट का ऐसे है. The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace. The meaning of the essay topic is very simple. The meaning is not very difficult. I'm sure you're able to understand the meaning of the topic. Now she writes. She starts by writing that the quote is given by Jimi Hendrix and also Mahatma Gandhi. All right, fine. इन्होंने कोट के बारे में बताया कि किसने ये कोटेशन दिया है. Implies that world will achieve peace when people will choose compassion and empathy over domination and control. Perfectly fine. It shows that pursuit of power for its own sake is the root of conflict, while a culture of prioritizing love will create a foundation for global harmony. यहां तक absolutely fine. तो यहां तक आपका जो है absolutely fine, absolutely good. यानी कि आप जो इस टॉपिक का मतलब है वो बताना चाह रहे हैं. Perfectly fine. ठीक है. देन ये कहते हैं कि द कोट शोज द डायकोटमी बिटवीन द पावर ऑफ लव एंड द लव ऑफ पावर. सो अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज कि शी इज कंटिन्यूइंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोट. नाउ व्हाट इज माय प्रॉब्लम? यू विल से दैट सर व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ शी इज एक्सप्लेनिंग द कोट? वेल, यू शुड गो एंड रीड इट. आई मीन इसमें कोई गलत बात नहीं है. व्हाट माय प्रॉब्लम इज दैट लुक, यू हैव कन्वेड व्हाट द एसे का कोटेशन मीन्स इन वन पैराग्राफ. Why don't you use an example? Why don't you use an anecdote? And why don't you use some real life situation or some kind of an anecdote from history, from your current affairs, maybe from the domain of environment, maybe citing some historical personality जो demonstrate करता है इस essay के topic के core essence को. So she goes on to explain the meaning of the topic. So what is the learning number one over here? Learning number one is that why do you want to over explain? So for example यहाँ पे भी love versus power में ये over explain कर रहे हैं, ये love of power को भी explain कर रहे हैं. See, you have to give your explanation in a very crisp way कि आपने एक या दो paragraphs में maximum आपने meaning, जो core meaning है, जो core essence है वो essay topic का, आपने वो समझा दिया. If you continue to keep on explaining and explaining and explaining, it will not fetch you marks. All right? नाउ अब यहां पे लर्निंग नंबर 2 आपकी कौन से आने वाली है? अब यहां पे वो लव वर्सेस पावर में अपने पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के लिए लिखते हैं एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट. ओके, परफेक्टली फाइन. आई एम नॉट अगेंस्ट राइटिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल, बट द वे यू राइट इट, किस तरीके से आप लिखेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट द वे यू राइट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसेडोनिया फॉट मेनी वॉर्स टू कॉन्कर द एंटायर नोन वर्ल्ड. नाउ इट लुक्स लाइक कि ये जीएस के आंसर की तरह लिख रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जीएस के आंसर की तरह लिख रहे हैं, विच इज वाई ये जो पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग है, दिस विल नॉट गो वेरी वेल विद द एग्जामिनर, द वे ऑफ राइटिंग. सो यहां पे हमने दो बातें समझनी है. पहला तो हमने ये समझना है कि हमने ऐसे लिखना कैसे है. दूसरा ये समझना है कि हमने ऐसे में क्या लिखना है. तो क्या लिखना है वो बात तो हम समझ रहे हैं, कैसे लिखना है. अब ये यहां पे ये लिखना एग्जाम्पल, आपको ये एग्जाम्पल नहीं लिखना, ये जीएस का आंसर नहीं है. आपने अपने पॉइंट को वैलिडेट करना है. आप लव वर्सेस पावर की बात कर रहे हो तो पहली बात, ये सब हेडिंग भी बहुत वेग है. कोई सब हेडिंग ऐसी रखो जिससे एग्जामिनर को ये पता लगे कि हाँ, आप इस सब हेडिंग के जरिए कुछ ऐसा पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, मे बी अलेक्जेंडर का या मे बी किसी और का, जो इस डायकोटमी ऑफ लव एंड पावर को एक्सप्लेन करने वाला है. ठीक है, तो यहां पे आपका ये वे ऑफ राइटिंग बहुत जनरल स्टडीज ओरिएंटेड हो गया. कंटेंट इज वेरी गुड, so which means that I am not giving marks only for the content. I am actually deducting marks if the way of writing is not very efficient. So the content is good, agreed, but the way of writing is again not that presentable ताकि लगे कि आप वाकई में टॉपिक को वैलिडेट कर पा रहे हैं. ऑलराइट, ओके, देन आगे जाके लिखते हैं. आगे जाके उन्होंने लिखा है
दैट ऑन द अदर हैंड पावर ऑफ लव, अगेन ये पावर ऑफ लव को फिर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इन्होंने लव ऑफ पावर एंड पावर ऑफ लव को एक्सप्लेन कर दिया, अब अगेन उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड पावर ऑफ लव इज सेल्फलेस एंड दिस हेल्प्स it help others without seeking domination and it can be visible in the act of kindness, forgiveness, etc. Very good. अब यहां पे ये एग्जाम्पल लेते हैं अशोका का, अगेन एग्जाम्पल अशोका. The example is good, the example is very good, but then again you don't have to write example Ashoka, you have to see you're weaving an argument. आप एक पैराग्राफ को वीव कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जहां पे आपने जनरल स्टडीज ओरिएंटेड आंसर नहीं लिखना, जहां पे आपने जीएस ओरिएंटेड आंसर नहीं लिखना, आपने अब ट्रांजिशन लेके आना है, राइट? आपने एग्जाम्पल से अपना सेंटेंस शुरू नहीं करना, आपने अशोका के, आप अशोका एग्जाम्पल देने वाले हो, फाइन, लेकिन आपने अपना जो ट्रांजिशन है, जो आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट है, वो आपने ऐसे शुरू करना है दैट टू अंडरस्टैंड द डायकोटमी ऑफ लव ऑफ द फॉर द पावर ऑफ लव एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू डिफरेंशिएट द लव फॉर पावर, लेट अस आल्सो नाउ एग्जामिन a very important historical personality who was none other than Ashoka the Great. यानी कि ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन makes all the difference. अगर आप सिर्फ एक EX या EG से शुरू कर रहे हो, that is going to subtract marks because ये एक general studies oriented argument बन जाता है. Now उसके बाद ये अडोल्फ हिटलर की बात करते हैं. अब अडोल्फ हिटलर की बात करते हैं. अडोल्फ हिटलर्स नाजी regime shows that destructive potential of the love of power. His want for domination led to the genocide in World War II. Fine. Killing millions. ना बहुत सारी बातें कॉमा 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 करके करने हैं. अगेन नॉट वेरी गुड. योर सेंटेंस शुड नॉट बी सो लॉन्ग कि आफ्टर एवरी 2-3 वर्ड्स आप कॉमा 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 डाल रहे हो. आपकी बात समझ गया, पॉइंट जो आप बताना चाह रहे हो आपकी बात समझ गए हम, वो पॉइंट गलत नहीं है, एग्जाम्पल गलत नहीं है. What our problem is? Our problem is that the way you are presenting the argument. What our problem is, what our situation is that we have to understand the way we are presenting the argument. देन यहां पे उसके बाद एक गलती करते हैं, सिमिलरली इंपीरियलिज्म. ये सिमिलरली वर्ड नहीं यूज करना, इट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड यूज्ड फॉर ट्रांजिशंस, राइट? सिमिलरली इंपीरियलिज्म यहां पे कहते हैं यूरोपियन colonization was a period when the love of power and resources drove empires to conquer and exploit nations, inflicting immense suffering that echoes to this day, having deep scars of inequality and expectation, etc., exploitation, etc. So again, this is द पॉइंट इज नॉट इनकरेक्ट, द पॉइंट इज करेक्ट. जो आपने पॉइंट में करना दैट इज नॉट इनकरेक्ट. लेकिन ये ट्रांजिशन ऐसे नहीं हो पाया. आपने अडोल्फ हिटलर के बाद सिमिलरली इंपीरियलिज्म की बात कर दी, जबकि हिस्टोरिकली देखें तो इंपीरियलिज्म वाला जो यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ पावर था या जो यूरोपियन एक्सपेडिशन था, दैट केम मच बिफोर देन हिटलर. तो अगर आप हिस्टोरिकल बेसिस पे भी आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं, तो अगर आपने अलेक्जेंडर की बात करी, अशोका की बात करी, देन हिटलर की बात कर रहे हैं, देन आप यूरोपियन एक्सपेडिशन की बात करें, तो ऑर्डर आपका गलत हो गया, राइट? आपका ऑर्डर गलत हो गया. तो आपको वो ऑर्डर जो है, वो ऑर्डर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है. सो विच मींस अगर आप हिस्ट्री को साइड कर रहे हैं, इफ यू वांटिंग टू साइट हिस्ट्री एंड इफ यू वांट टू गिव एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स, देन यू आल्सो हैव टू मेक श्योर दैट आपके जो एग्जांपल्स हैं दे आर फॉलोइंग अ सर्टेन क्रोनोलॉजी. देन उसके बाद आफ्टर द इंपीरियलिज्म बाद, देन उसके बाद इवन द वर्ल्ड वॉर्स. अब यहां पे इवन जो वर्ड है, मेरी यहां पे प्रॉब्लम है. इवन द वर्ल्ड वॉर्स, आप कोहेरेंस को समझो. अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो एंड टू एंड, कोहेरेंस को समझो. अब कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस है कि आपने हर एक चीज को एक सीक्वेंस पे फॉलो करना है. अब आपने एकदम से यूरोपियन एक्सपेंशन के बाद, यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ पावर्स के बाद, इंपीरियलिज्म के बाद इवन द वर्ल्ड वॉर्स पे आ गए हो. तो ये इवन वर्ड, सिंगल वर्ड इज नॉट द वर्ड फॉर ट्रांजिशन. इट हैज टू बी अ सेंटेंस. इट हैज टू बी अ सेंटेंस ऑफ एटलीस्ट वन लाइन. मार्क माई वर्ड्स, प्लीज नोट इट डाउन. ये जो वन लाइन के सेंटेंसेस होते हैं ना, जो ट्रांजिशन स्टेटमेंट्स होते हैं, they act like bridges. They act like bridges. Please comment in the comment section bridges. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यहां तक, bridges होते हैं जो आपके एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को ट्रांजिट करने के लिए कनेक्ट करते हैं. अब फॉर एग्जांपल आपके सामने एरोप्लेन है. अब एरोप्लेन के ऊपर एकदम से तो नहीं चढ़ोगे ना. एरोप्लेन का एक वो एक दिस एस्केलेटर जिसके ऊपर आप चढ़ते हो, आप पैर रखते हो, ऊपर चढ़ते हो, कॉकपिट, फिर वहां पे जाते हो, फिर वो दरवाजा बंद होता है, द्वार बंद होते हैं एरोप्लेन के. ऐसे तो नहीं कि एरोप्लेन आपके सामने, आपने जंप मारो एकदम से एरोप्लेन के अंदर आ गए. तो देयर हैज टू बी अ कनेक्शन कि आप आए हो, आप वहां पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड से आप टुवर्ड्स दी लाइक एरोप्लेन जा रहे हो. सो देयर हैज टू बी दैट एलिवेटर, दैट स्टेयर जिसको आप चढ़ के ऊपर जाते हो. So understand one thing, you might say कि सर मेरे पास ना बहुत बड़ा घर है, I have a house which is 4 canals or 5 canals, but then okay, then you say that I have 7 floors in my house, but then is there a connectivity from one floor to the other floor? Do you have a lift or do you have some stairs through which I can climb from ground floor to first and first to second? Without any stairs, there is no point having a 7 floor or like a multi-student house built on 4 canals, 5 canals or whatever.
You need to give that provision, you need to give those stairs, you need to give that lift as well, कि अगर आपने ऊपर से नीचे जाना है। तो ये जो एक एक लाइन के जो ट्रांजिशन स्टेटमेंट होते हैं, ये आपको एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कनेक्ट करते हैं, लेके जाते हैं। अब आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा, पहले आपने दूसरे पैराग्राफ में बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल समझ आ रहा है, एग्जाम्पल रिलेट भी हो रहा है टॉपिक के साथ, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपने ट्रांजिशन यूज नहीं करा है, तो आपके मार्क्स कटेंगे। देन वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने यहां पे वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर की बात करी विद इन द वर्ल्ड वॉर, एंड देन उसके बाद वो प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। एंड वी कंटिन्यू टू विटनेस दिस स्ट्रगल इन करंट जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां पे नेशनल इंटरेस्ट एंड द परस्यूट ऑफ पावर ऑफन टेक्स आवर डिप्लोमेसी एंड द वेलबींग ऑफ सिविलियन पॉपुलेशंस। एग्जाम्पल अभी उन्होंने पहलगाम अटैक की बात करी है। Again, now this my problem is not the Pahalgam attack. Pahalgam attack mention करना fine, but the problem is starting the sentence with ex. No, that is not what has to be done. So remove x from your life, all right, x from your life, and also remove ex example from your essay writing as well. So this x can be very toxic. X in your life can also be very toxic in a relation terms, and x starting a sentence from x in an essay can also be very very toxic. Toxic in the sense will not give you marks. All right. So again, यहाँ पे पहलगाम अटैक की बात करते हैं। पहलगाम अटैक इन इंडिया बाय टेररिस्ट शोइंग रिलीजन एज अ बेस ऑफ किलिंग इनोसेंट सिविलियंस टूरिस्ट। देन व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? आपने ये 2-3 लाइनों में पहलगाम अटैक के बारे में मेंशन कर दिया, बट किस रेलेवेंस में कर रहे हैं? रिमेंबर 3 थिंग्स यू हैव टू आस्क योरसेल्फ जब कोई एग्जांपल को आप कोट कर रहे हो। तो इस एग्जांपल का व्हाट, व्हाई एंड हाउ, उस एग्जांपल का व्हाट, व्हाई एंड हाउ, आपने ये 3 चीजों को जरूर मेंशन करना है कि व्हाट, व्हाई और हाउ, ये तीनों चीजें कैसे रिलेटेड है इस एग्जांपल के साथ, इस ऐसे टॉपिक के साथ। महात्मा गांधी का नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट, अब उसके बाद पहलगाम के बाद आप महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल पे आ गए। सो अगेन नो कनेक्शन, अगेन नो कनेक्शन। मैं कहता हूं आपने बहुत उम्दा लिखा है, मैं कहता हूं आपने इस पैराग्राफ में बहुत उम्दा लिखा है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कनेक्शन की है। आपने एक घर में फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया, थर्ड फ्लोर बनाया, आपका फर्स्ट फ्लोर बहुत अच्छा है, आपका सेकंड फ्लोर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के अंदर आप कहते हैं सर मैंने सेकंड फ्लोर में इटालियन फर्नीचर डाला है, इटालियन मार्बल है, ये है वो है, लेकिन भैया मैं आऊं कैसे ऊपर? मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर कैसे आऊं? छलांग लगा के आऊं? कैसे आऊं मैं? अगर आपके इतने बड़े घर में मेरे को छलांग लगा के आना पड़ रहा है, तो आपका इतना लग्जूरियस घर बनाने का फायदा क्या हुआ? आपको प्रोविजन ही नहीं आपने दिया, आपने कोई स्टेयर्स, कोई लिफ्ट आपने वो दिया ही नहीं है। तो दैट इज व्हाट माय प्रॉब्लम, कि सर मैं आपके एसे को पढ़ रहा हूं, मैं आपके एसे की बिल्डिंग को देख रहा हूं, लेकिन मेरे को एक जगह से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे जाऊं। अब आपने महात्मा गांधी का पैराग्राफ दे दिया, महात्मा गांधी के पैराग्राफ में आपने 4 बातें अच्छी लिख दी, लेकिन कनेक्शन नहीं था। पहले वाले पैराग्राफ में पहलगाम की बात हो रही है, देन यहां पे ये बात हो रही है, कनेक्शन नहीं है। चलो कनेक्शन बनाओ, मैं कहता हूं कि मैं समझ गया कनेक्शन क्या है, बट बेटा वहां पे एग्जाम में तो मैं या कोई और सर या कोई और मैडम जो ऐसे पढ़ाते हैं वो तो नहीं बैठे होंगे। वहां पे तो एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। नो, एग्जामिनर आपको मार्क्स कम देगा, फिर वही 80-90 मार्क्स में स्ट्रगल करेंगे आउट ऑफ 250, नहीं आएंगे फिर अच्छे मार्क्स। व्हाई? बिकॉज ये आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो। आप कहते हो सर मेरे पास कंटेंट बहुत अच्छा था, बट अगेन कंटेंट अच्छा था, लेकिन ट्रांजिशन कैसी थी? आपने वो कंटेंट समझाया क्या उस लेवल पे कि उस लेवल तक एग्जामिनर को कन्वे कर पाए? देन उसके बाद नेल्सन मंडेला, ऑल्सो एन एग्जाम्पल, हाउ फॉरगिवनेस over revenge can change other people's perspective. His embrace of reconciliation ended apartheid and limited South Africa. उसके बाद ये 4 लाइनों में करके ऑल्सो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो पहली बात तो आपने नेल्सन मंडेला को 4 लाइनों में खत्म कर दिया। देन उसके बाद मार्टिन लूथर किंग को आपने शुरू ऑल्सो से किया, अगेन गलती होगी। देखो मैंने टिक मारा हुआ है, अगेन कह रहा हूं कि एग्जाम्पल गलत नहीं है, बट समझाने का तरीका सही नहीं है, समझाने का तरीका सही नहीं है और ट्रांजिशन नहीं है। 4 लाइनों में नेल्सन मंडेला खत्म हो गया, देन ऑल्सो के बाद मार्टिन लूथर किंग शुरू हो गया। अब आप बताइए ये क्या जस्टिफाइड है कि नहीं है? नहीं जस्टिफाइड है, राइट? तो उसके बाद यहां लिखते हैं दीज ऑल एग्जाम्पल्स शोड दैट व्हेन लव ट्रांसलेटेड इनटू मॉरल करेज इट इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स फॉर पीस। चलो आपने ये 2-3 लाइनों में चीजें समाप्त कर दी। देन उसके बाद आप स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की बात करते हैं, जहां पे आप हिंदुइज्म में अहिंसा की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, बुद्धिज्म टीचर्स लविंग काइंडनेस एटसेट्रा। चलो यहां पे आपने रिलीजन्स को ऐड कर दिया, स्पिरिचुअलिज्म को, नॉट अ बैड आइडिया। क्रिश्चियनिटी की बात आपने करी, लव दाय नेबर, वेरी गुड, ठीक है। देन उसके बाद आप पावर हाउएवर इज नॉट इनहेरेंटली इविल व्हेन गाइडेड बाय विजडम एंड कंपैशन। तो ये बातें आप कहते हैं कि ठीक है, मतलब ये बातें हम अपने धर्मों से भी समझ पा रहे हैं, तो ठीक है, कोहेरेंस यहां पे आ रहा है। क्यों कोहेरेंस यहां पे आ रहा है? बिकॉज यहां पे थ्योरी है। अब जहां पे थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो, यहां पे कोहेरेंस आ रहा है, राइट? आफ्टर एवरी पैराग्राफ यू सीइंग कोहेरेंस, थ्योरी है। बट आफ्टर एवरी पैराग्राफ when you have to quote historical examples or anecdotes which are not necessarily historical, then coherence नहीं आ रहा, then transition नहीं आ रही, यहां पे आ रहा है।
विच ऑल्सो कम्स टू द पॉइंट लर्निंग। एक और लर्निंग यहां पे हो रही है दैट लुक, हम जब थ्योरी लिखने बैठते हैं तो कोहेरेंस आ जाता है, लेकिन जब हम एग्जांपल्स देने बैठते हैं, जब हम एनेक्डोट देने बैठते हैं, तब हमारा एग्जांपल नहीं आ पाता। ऑलराइट, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दूं, मेरे को बतानी जरूरी है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो अपनी, तो सेल्फ स्टडी करते रहो। एक हमने प्लानर बनाया है, सेल्फ स्टडी प्लानर बनाया है, वो उसको आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, वीडियो देख ही रहे हो, पॉज करो, पॉज करके डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सेल्फ स्टडी प्लानर का लिंक दिखाई देगा, उसको क्लिक करो, क्लिक करके आप अगेन अपना इस सेल्फ स्टडी प्लानर को डाउनलोड करके अपनी सेल्फ स्टडी को और ज्यादा टारगेटेड और बेटर ओरिएंटेड बना सकते हैं। बिकॉज ये बहुत बेहतरीन सेल्फ स्टडी प्लानर है जो कि यही सोच के बनाया गया है कि अगर एक बच्चा अपने आप तैयारी करना चाहता है तो पहली बात तो वो करे कैसे, और अगर वो कर भी रहा है तो क्या क्या चीज को प्रायोरिटी देनी है, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अभी कर लेना, अगले वीडियो में हो ना हो अभी कर लेना, ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। ये लाओजू नहीं संजू की कहावत है, चलो इन्होंने बात यहां पे लिख दी। देन लिखते हैं कि द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द लव ऑफ पावर रिप्लेसेस द पावर ऑफ लव, व्हेन ईगो नॉट एम्पैथी ड्राइव्स एक्शन। अब अगेन ये रेपिटेटिव बात लग रही है, पहले आप बता चुके हो। सो यू आर ऑन टू द 7th पेज ऑफ योर एसे एंड स्टिल यू आर ट्राइंग टू वैलिडेट द डायकोटमी ऑफ लव ऑफ पावर एंड पावरफुल लव। Then contemporary world में ये कहते हैं that the conflict between the two factors continues. Russia-Ukraine war started in 2022. Again no coherence. No coherence पहले थ्योरी थी, अब उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर पे आ गए हैं। देन आप रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं कि पावर एक्सपैंडिंग टेरिटोरियल एम्बिशन एंड द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत जेनरिक बात लिखी है, स्पेसिफिक बात नहीं है। यू हैव टू ऐड समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक। लव ऑफ पावर, यू हैव टू मेंशन कि व्लादिमीर पुतिन दैट रशिया was demanding guarantees. Russia was demanding guarantees from America and from NATO कि eastward expansion NATO का नहीं होगा, but because the NATO was facing an eastward expansion, which is what led Vladimir Putin to have from a position of insecurity, he wanted to invade Ukraine so that this dream project of NATO is halted. राइट, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, आपने इसमें पूरी की पूरी जो पर्सपेक्टिव है, जब रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हो, आप लव और पावर के डायनामिक्स को टच अपॉन कर रहे हो, सो यू हैव टू गिव द फुल पर्सपेक्टिव. You have to give the full perspective and the full background which led towards the Russia-Ukraine war, and then you try to relate that कि कैसे ये टॉपिक के साथ relevant है. All right. Then again यहाँ पे बहुत वेग बात है. Terrorism in India also shows love for power by few radical groups and is supported by Pakistan. Example: recent car blast. This is not a GS answer. This is not a WhatsApp message, which you're sending across to your friends. This is not a comment which you're typing on a social media post. This is not a comment which you're typing to get more likes on a very popular influencer ka reel. You have to understand that you have to make a very, very, very articulative argument which has to be very insightful yet be very crisp, and has to be written not in a very overly scholarly way, but has to be written in a subtle way which is linking the core essence of the topic with your example. Alright. On the other hand, then बाद में ये global humanitarian responses to disasters की बात करते हैं, pandemic, the real glimpses of power of love when nations share vaccines and resources. Again a very very vague line. Again ये जो line है बहुत vague है. This is not how you justify. ठीक है, आपने वो बात कर दिया. अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप इतना एक्सटेंड कर रहे हैं. अब ये जो essay है ये बहुत एक्सटेंड हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ है. ये एक essay 14 पेजेस में लिखा गया है. मतलब मैं पूरा का पूरा ऐसे तो यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, बट वैसे इवैल्यूएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल्ड फीडबैक भी दिया है. यहाँ पे मैंने फीडबैक भी 4 पेजेस का दिया है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत डिटेल्ड फीडबैक पे काम करते हैं. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ से सबसे बड़ी जो लर्निंग हो रही है वो ये है कि हमको ना इतना लंबा ऐसे नहीं लिखना है. हमको इतना लंबा ऐसे नहीं लिखना कि हम 14 पेजेस में कैसे लिख रहे हैं. देखो ये 14 पेजेस का ऐसे है, 14 पेजेस का ऐसे, बाकी 3 से 4 पेजेस का मेरा फीडबैक है. बिकॉज मेरा तो फीडबैक होगा ना, बिकॉज मैंने अब अगर किसी ने इवैल्यूएशन कोर्स ज्वाइन किया है या किसी ने ऐसे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है, तो भैया फीडबैक तो देना बनता ही है मेरा. इसी करके मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऐसे डिटेल में फीडबैक करता हूं. अब इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इनके ऐसे में क्या है कि अंडर एक्सप्लेनिंग एंड ओवर राइटिंग. आप ऐसे को अंडर एक्सप्लेन कर रहे हो और ओवर राइट कर रहे हो, विच इज नॉट गुड. कि आपकी एक्सप्लेनेशन में डेफिशिएंसी है, लेकिन फिर भी आपने 14 पेजेस का ऐसे लिख दिया. मैं कहता हूं आपने 5 एग्जांपल्स दिए हो, 5 के 5 एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हो, फुल स्टॉप, रादर देन कि आपने 20 एग्जांपल्स दिए, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया और ओवरराइट कर दिया. ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि हम पॉइंट आउट करते हैं. और अंडरस्टैंड वन थिंग, द फोकस इज कि यहां पे हम कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सके. देखो गलतियां करो, आई एम ऑल इन कि आप यहां पे गलतियां कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड, जहां पे भी वीडियो देख रहे हो आपने ये गलतियां नहीं दोहरानी है. आई एम श्योर कभी ना कभी तो ऐसे लिखोगे. मैं कहता हूं चलो आप मेन से पहले अपना ऐसे लिखो.
मैं कहता हूं ऐसे वाले दिन अपना ऐसे लिखो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको होगा कि यार हमको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे वैसे हम पेपर वाले दिन जाके लिख लेंगे। अरे जब भी लिखो, लेकिन आप ये गलतियां तो नहीं करोगे ना, एटलीस्ट ये गलतियां दोहराओगे नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भरोसा है हम पे तो ऑब्वियसली नहीं दोहराओगे, नहीं तो अदरवाइज आपकी तो मर्जी है, कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। बाकी दोस्तों ऐसे ऐसे के ना हमने कोर्सेज निकाले हुए हैं क्योंकि एक्सपीरियंस है, सॉरी गला खराब हुआ पड़ा, एक्सपीरियंस है, 4 बारी मेंस दिया है, 4 बारी 140 प्लस मार्क्स आए हैं ऐसे में तो पता है कि क्या गलतियां बच्चे कर सकते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी है। तो हमारे कोर्सेज हैं, हमारा इवैल्यूएशन कोर्स भी है, ई वैल्यू 2.0, हमारे फाउंडेशन ऐसे के कोर्सेज भी हैं। जो इवैल्यूएशन कोर्स है अगेन उसमें 10 ऐसे के टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं, 10 टॉपिक्स हम दे रहे हैं, टॉपिक्स के मॉडल एसेस भी दे रहे हैं, उसकी इवैल्यूएशन भी हम दे रहे हैं। और ये कोर्स सितंबर 2026 तक वैलिड है। तो अगर चाहो तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। हमारा टोल फ्री नंबर क्या है, यहां पे लिख दूं, 1800-890-3043। ठीक है, 1800-890-3043। तो जानकारी ले सकते हैं और आप हमारे ऐसे के इवैल्यूएशन और फाउंडेशन कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।